So let us start today's class. So in the last class, I was discussing the general non-linear programming problem and taking KKT conditions for solving the G and LPP, है ना? एक प्रॉब्लम आई थिंक चल रही थी, इट वाज कंप्लीटेड, कुछ रह गया था प्रॉब्लम में, शायद हाफ ही हो पाई थी, है ना? क्यों अभिलाष? So I was doing one problem. 2721 प्रॉब्लम वाज दिस. ये रह गई थी ना कुछ, याद है किसी को? यस सर, नेसेसरी कंडीशंस लिखी थी सर. हाँ हाँ, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, शायद कुछ नेट प्रॉब्लम हो गई थी. तो इट वाज मैक्स z इज इक्वल टू 3.6 x1 माइनस 0.4 x1 स्क्वायर प्लस 1.6 x2 माइनस 0.2 x2 स्क्वायर. ये प्रॉब्लम आपकी थी. एंड टू कॉन्स्टेंट्स, नहीं ये वाली थी क्या? कॉन्स्टेंट्स तो उसमें टू थे शायद. ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो कर दी थी हमने. इससे नेक्स्ट थी, लेट मी सी इट. ये प्रॉब्लम हमारी हो गई थी. प्रॉब्लम थी आपकी, ये थी प्रॉब्लम. ओके हाँ, ये तो हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी. दैट इज ऑलरेडी डन. सो प्रॉब्लम वाज 2722 एंड यार ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट था. मैक्स z इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर प्लस 4x1 plus 6x2, subject to the constants. Two constants were given to you, x1 plus x2 less than equal to 2 and 2x1 plus 3x2 less than equal to 12, and the non-negative restriction was given to you this. ये प्रॉब्लम थी. So here we got तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिस इज योर fx है ना, यू नो. इसको z को मैं fx लिख सकता हूँ. And these two constants I can write your h1x. So this I can write x1 plus x2 minus 2, take on the left hand side. इसे हम कांस्टेंट बना लेते हैं, इक्वल टू 0. h1x we basically take this is equal to 0, लेस देन इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट, तो इसे ऐसे ही ले लीजिए. एंड योर h2x will be 2x1 plus 3x2 minus 12. So it was your h1 h2. So fine, then we got your KKT conditions. Four conditions are there, you know. First condition will be what? fj is equal to लिख ले या माइनस, एक ही बात है ना. इज इक्वल टू लिख लेते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं. तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to 2 here actually, क्योंकि you have two constants, lambda I h I j. So you can have j is 1 to 3. No, j means number of unknowns 3 है, and I is number of constants. So you have to use two Lagrange multiplier. This is your first KKT condition. Second was lambda I h I is equal to 0. Third was h I less than equal to 0, जो condition given है आपको. And fourth will be कि your lambda I they must be non-negative. So when I solve, इसको हमने solve करा था I think, है ना? After solving, Yes, you will, हाँ. So when you will solve this first,
जब हमने फर्स्ट सॉल्व किया तो हेयर दिस इम्प्लाइज यू आर गेटिंग 3 इक्वेशंस. फर्स्ट आएगी एफ जे, इट वाज कमिंग माइनस 2x1 plus 4 is equal to lambda 1 plus 2 lambda 2. 3 इक्वेशन आएंगी, देखिए f1 f2 f3 है ना, क्योंकि j1 2 3 है. f2 means del f over del x2. Second equation will be coming minus 2x2 plus 6 is equal to lambda 1 plus 3 lambda 2, and third condition will be coming minus 2x3 is equal to 0. That means x3 is 0. यहाँ से हमें x3 मिल गया ऑलरेडी. And then ये फर्स्ट से आ रहा था. Similarly second will give you second. So second से भी 2 equations आएंगी आपके पास. You can write first will be what, lambda 1 x1 plus x2 minus 2 is equal to 0, and second will be lambda 2 h2 means into 2x1 plus 3x2 minus 12 is equal to 0. Okay, and similarly here it will give you two condition. Third equation will give two conditions. First will be h1 and second will be why I am writing all these things, why I am writing all this, because when I will find the x1 x2 x3 I will have to check whether the points are satisfying all the conditions or not, है ना. अगर कोई भी एक कंडीशन वायलेट हो रही होगी तो दैट पॉइंट विल नॉट बी द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल. इसलिए हमें सारी कंडीशन चेक करनी होगी जब पॉइंट निकालेंगे. और हेयर दिस फोर्थ वन यू हैव लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, है ना. तो ये आपका यू हैव अ सेट ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. ये हमारे पास पूरा सेट ऑफ इक्वेशंस आ गया. ये आपकी केकेटी कंडीशंस कहलाती है. तो यहाँ पर आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हाउ टू सॉल्व इट. तो यू हैव टू सॉल्व इट. तो आई विल टेक एक्चुअली बिकॉज हेयर यू कैन सी इट इज द ओनली इक्वेशन व्हिच हैज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, है ना. ये जो आपकी थर्ड सेकंड इक्वेशन है. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑलवेज के व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो केस फर्स्ट आई वाज कंसीडरिंग फ्रॉम दिस कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म तो ईदर 1 0 और सेकंड 0. So I will always start from this. So case 1 will be there. So in fact 4 case will be there. First case what I am taking, lambda 1 0 and lambda 2 0. First case कि lambda 1 0 and lambda 2 0. इसका मतलब कि ये x1 plus x2 minus 2 is not 0, 2x1 plus 3x2 minus 12 not 0. तो अगर lambda 1 lambda 2 0 है तो I can find from this first and second. यहाँ पुट करें हम, यहाँ से हमें इक्वेशन आराम से मिल जाएगी, देखो, है ना. तो दिस मीन्स योर फर्स्ट की जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन यहाँ रखेंगे. थर्ड इक्वेशन दिस गिव, इसको सॉल्व कर लें आप तो क्या जाएगा x1 2 x2 3 एंड x3 0, है ना. देखो यहाँ रखो, सॉल्व कर लो इसको. जहाँ 0 पुट करेंगे x1 2 हो जाएगा, टेक दिस साइड से 3 हो जाएगा. लेकिन ये 2 3 0 इफ यू सी हियर इट विल नॉट सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम सब जगह रख के देखेंगे. तो जब यहाँ रखेंगे आप तो 2 + 3 5 - 2 + 1 आ रहा है, विच शुड बी लेस देन. सो हियर यू कैन सी बट दिस violates or does not satisfy equation third, first and second. So we cannot take it. So discard it. ये केस हमने डिस्कार्ड कर दिया. केस सेकंड लेके चलते हैं. केस सेकंड में आई एम टेकिंग सपोज नाउ lambda 1 0 lambda 2 नॉट 0. अब एक को हमने नॉट 0 वाला केस लिया. तो अगर ये नॉट 0 है तो यहीं पर अगर lambda 2 नॉट 0 इट मींस व्हाट, दिस शुड बी 0, सेकंड टर्म, है ना. तो दिस इंप्लाइज दैट 2x1 plus 3x2 this is equal to 12, बिकॉज यहाँ -12 था. दिस इक्वल टू 0. एक इक्वेशन आपके पास ये मिल गई. ओके. और lambda 1 0 जब आपने यहाँ, अब lambda 0 यू पुट हियर
इन द फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लैम्डा 1 0 पुट करें तो क्या मिलेगा? तो फर्स्ट का इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में लैम्डा 1 0 पुट करेंगे हम, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, देखो -2x1 + 4, दिस गिव -2x1 + 4 is equal to 2 lambda 2 and -2x2 + 6 is equal to how much? 3 lambda 2. ठीक है, तो ये आपके पास 2 अननोन में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। x1 x2 lambda 2 है ना, आई विल सॉल्व इट। तो इससे क्वेश्चन मिल जाएगी आपके पास एक x1 x2 में और, तो यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ये कितना 3 लैम्डा 2 है, तो आई कैन राइट, डिवाइड कर दें इसको, अगर लैम्डा 2 यहाँ पर 2 से और यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक क्वेश्चन मिल जाएगी ना इसे सॉल्व करेंगे तो। तो भाई यस सर। इसको आप सॉल्व करके पूरे इस क्वेश्चन को x1 x2 में ला सकते हैं। यस सर। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, एक इक्वेशन आपको मिलेगी x1 x2 में यहाँ पर, और एक ऑलरेडी है। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू, these two equations, these two का मतलब ये, इससे एक आपको मिलेगा, है ना, इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ चाहे तो, -2x12 + 4 is equal to ट्वाइस, और लैम्डा 2 की वैल्यू इससे रख दो उठा के, कितना हो जाएगा? -2x2 + 6/3, है ना, इससे इधर है, और इसे आप सॉल्व कर लो तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगी आपके पास, सिंपल, फिर इधर ले जाके जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कमिंग x1 is equal to 24/13, x2 is equal to 36/13। टू वेरिएबल में इक्वेशन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड लैम्डा 2 विल बी कमिंग 2/13, लैम्डा 1 तो ऑलरेडी 0 था, और x3 0 है ये आपके पास ऑलरेडी, x3 तो हमारे पास निकल कर आ चुका है ऑलरेडी, है ना। बट दिस सॉल्यूशन आल्सो वायलेट्स थर्ड का फर्स्ट, ये फिर थर्ड का फर्स्ट वायलेट हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट क्या है आपका, ये कि द डिफरेंस शुड बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर आपके पास जब आप सॉल्व करके रखेंगे 24 + 36 कितना हो जाएगा, देखो 40 60/13, है ना, तो ये आपकी साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगेन वायलेट्स, सो डिस्कार्डेड, इसको भी डिस्कार्ड करना है। तो आई विल हैव टू टेक द थर्ड केस थर्ड। Suppose now I am taking both are non-zero. If both are non-zero, then what will happen? This is equal to 0, है ना, multiple of lambda 1 this, and this equal to 0। यहाँ पे दो इक्वेशन मिल जाएंगी आपको। Is it clear? Yes sir। हाँ। So if this is equal to 0, we get first and second, इक्वेशन की जो फर्स्ट एंड सेकंड है, इससे you will be getting x1 + x2 is equal to 2 and 2x1 + 3x2 is equal to 12, है ना। ये मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया कांस्टेंट, तो दिस इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू 12। अब ये टू इक्वेशंस हैं, इन्हें आई कैन सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो इट विल गिव यू x1 is 6, x2 is 8, x3 ऑलरेडी 0 हमारे पास है पहले से। अब ये 6 और 8 है, इसे पुट करेंगे हमारे पास, तो लैम्डा 1 निकल आएगा आपके पास। सर x1 -6 आ रहा है। हाँ -6 है, सॉरी -6 है, करेक्ट, सबट्रैक्ट किया हमने तो -6 है। लैम्डा 1 is 68 एंड लैम्डा 2 विल बी -26 आएगा। देखो जब हम इसको वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, x1 x2 यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की इक्वेशन बनकर आ जाएगी, है ना। तो इससे लैम्डा 1 लैम्डा 2 में लैम्डा 1 तो पॉजिटिव आएगा, बट लैम्डा 2 इज कमिंग लेस देन 0, सो अगेन इट वायलेट्स योर फोर्थ कंडीशन, फोर्थ केटी कंडीशन। सो डिस्कार्डेड, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया।
लास्ट केस और बचा भाई, केस फोर्थ क्या रह गया अब, लैम्डा वन नॉट जीरो बट लैम्डा टू जीरो, क्योंकि थर्ड सेकंड केस हमने लिया था लैम्डा वन जीरो लैम्डा टू नॉट जीरो. So when lambda 2 is equal to 0, lambda 1 not 0. So I will take this thing first. है ना? Lambda 1 not 0 means what? x1 plus x2 is equal to 2. So second, first equation implies that x1 plus x2 is equal to 2. तो ये इक्वेशन ये बन गई. इससे हम सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ सॉल्व किया था ऐसे ही. यहाँ हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया था, सेम थिंग वही करनी है. अब आपके पास इक्वेशन बस ये वाली चेंज हो गई है, ये सेम रहेगी, जो यहाँ से निकाली होगी वही आ जाएगी. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर सॉल्विंग दिस विथ फर्स्ट एंड सेकंड, है ना. फर्स्ट एंड सेकंड से जो आपने ये निकाली है वो सेम इक्वेशन आएगी, जाहिर है यही तो निकाली थी. दिस विद वन सिक्स फर्स्ट एंड सेकंड विच गिव x1 is half, x2 is 3/2 and x3 तो 0 आपका ऑलरेडी आ चुका है. lambda 1 is 0 already, sorry lambda 1 नहीं lambda 2 0, lambda 1 will be coming here 3 आएगा यहाँ पे. तो आप सॉल्व करेंगे एंड lambda 2 ऑलरेडी 0. तो इट इज सेटिस्फाइंग lambda 1 lambda 2 पॉजिटिव एंड नाउ यू विल सी कि दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाई ऑल द केकेटी कंडीशन. जैसे अगर हम थर्ड की फर्स्ट कंडीशन देखें जो बार बार डिस्कार्ड हो रही थी, तो थर्ड की फर्स्ट कंडीशन वाज दिस, है ना. तो x1 हाफ आया है या 3/2, तो हाफ प्लस 3/2 तो 4/2 2/2 2 माइनस 2 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है आपके पास. सिमिलरली हेयर यू कैन पुट हेयर 2 इंटू हाफ तो 1 हो गया, प्लस 3 इंटू हाफ 3 इंटू 3/2 है ना 9/2 माइनस 12, ये भी नेगेटिव आ रहा होगा आपके पास, 9 इंटू 11/2 माइनस 12. So this will satisfy all the condition जो लास्ट केस आया था आपके पास. So you can see here this solution satisfies all the KKT conditions, hence the optimum solution is x1 is half, x2 is 3/2, x3 is 0, lambda 1 is 3 and lambda 2 is 0, है ना. and the max value मैक्स ऑफ जेड इस सबको उड़ा के फंक्शन वैल्यू पुट कर दी आप, ये आपका फंक्शन था यहाँ पर. आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी कमिंग 17/2. So it will be the final answer. Okay, so if you have this type of problem you can solve like this. तो जब नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स बढ़ेंगे आपके इक्वेशन बढ़ेंगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी. तो ये मैंने सिर्फ 3 वेरिएबल्स और 2 कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशन ली है, वही आपके मैंने असाइनमेंट में भी दी है. 2 प्रॉब्लम से ही आप सॉल्व करेंगे. 2723 है एंड पेज नंबर 838. सब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है अपने असाइनमेंट की कॉपी पे. बनाना शुरू कर दोगे नहीं करिए तो. अच्छा इसमें एक चीज और थी यहाँ कि वैन द ये मैंने आपको शायद बता दिया था, इसका हेसियन मैट्रिक्स निकालेंगे ना. यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास ये आई. Yes, sir. नाउ आई टोल्ड यू कि दिस कंडीशन विल बी सफिशिएंट इफ योर मैक्सिमाइज फंक्शन इज कॉन्वेक्स कॉनकेव एंड एच एक्स इज कॉन्वेक्स, है ना. तो वो तो हमने चेक कर दिया था ऑलरेडी. अभी आपके Yes, पास ये कंडीशन सफिशिएंट कब होंगी, ये आप लिख सकते हैं. नाउ हेयर fx is concave and h1x h2x are convex.
ये हमने चेक किया था, इसका हेसियन मैट्रिक्स कितना निकल के आया था, शायद -2 आया था ना निकल के। Yes, sir. वो आपकी लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें सॉल्व किया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका हेसियन मैट्रिक्स हमने निकाला था, बॉर्डर मैट्रिक्स, हेसियन बॉर्डर मैट्रिक्स। तो इसका जो प्रिंसिपल माइनर आया था, इट वाज कमिंग -2 निगेटिव, है ना। ये हमने सॉल्व किया था, ये आपका 5/5 का मैट्रिक्स बना था, 2 + 3, 3 अननोन्स 2 कॉन्स्टेंट्स। तो जब ये -2 होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट f(x) इज कॉनकेव। दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर, देयर यू कैन सी इट। ये बात भी लिखनी है आपको कि फंक्शन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तभी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगी। ठीक है। देखो एक और प्रॉब्लम है, ये 2802 प्रॉब्लम है आपके पेज नंबर 849 पर। इस टाइप की प्रॉब्लम भी आ जाती है। सॉल्व ग्राफिकली एंड वेरीफाई द KKT कंडीशंस। मतलब ग्राफिकली सॉल्व करिए पहले तो। अब जाहिर है अगर ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप पूछ रहे हैं तो आपको 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम दी होगी, और फिर उसको आप वेरीफाई करें KKT कंडीशन से। भाई जब आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी, पॉइंट्स निकल के आएंगे x1 x2, है ना। फिर उस प्रॉब्लम को आप KKT कंडीशन से वेरीफाई करें, यानी कि वो जो पॉइंट्स आ रहे हैं क्या वो KKT कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। क्योंकि KKT कंडीशंस क्या देती हैं आपको, ये भी वही पॉइंट देती हैं, पॉइंट ऑफ ऑप्टिमा। तो ये प्रॉब्लम मैंने इसमें 2802 प्रॉब्लम जो ली है, ये वही प्रॉब्लम है हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। देखो ओके। So it is the problem x1 x2 less than equal to 8, x1 square plus x2 square less than equal to 20। ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने, वी हैव डन दिस प्रॉब्लम ग्राफिकली, याद है। Yes, sir. इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था। यहाँ पे कह रहे हैं पहले तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाला था। आप यू कैन सी इन माय प्रीवियस स्लाइड्स, है ना। ये फिगर आपका कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, नॉन कॉन्वेक्स रीजन आ रहा था, x1 x2 less than equal to 8, it will be like this rectangular hyperbola, and this represents a circle center at 0 0, radius is square root 20। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आई कैन सी लाइक दिस, या तो जो कॉमन रीजन है लेस देन इक्वल टू मींस दिस इज द रीजन। it was origin, it was your A B C D। तो वी सॉल्व इट। तो जब सॉल्व किया था तो इसके हमारे पास जो पॉइंट्स निकल कर आए थे, दैट वाज जस्ट अ मिनट, यस। तो when we solved, we got 2,4 was the point. After solving graphically, we get, यहाँ पर जो आपके पास C point था, that C point was the point of maxima। C जो point इसके coordinate 2,4 होंगे, we get this as the point of maxima, and the value was
टू कॉमा फोर पे कितने आ गए जी? 2 to the 4 and 4 to the 12, 16 ये आ रही थी, है ना? तो ये दो पॉइंट्स थे और इट वाज द मैक्सिमम वैल्यू। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस प्रॉब्लम इज डन। नाउ आई वांट टू फाइंड द वेरिफिकेशन। जो नेक्स्ट वर्क है आपका कि वेरीफाई करो इसको केकेटी कंडीशंस को। तो वेरिफिकेशन ऑफ योर केकेटी कंडीशंस, ये वेरीफाई करना है। ओके तो केकेटी कंडीशंस के लिए हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा फंक्शन की फॉर्म में f(x), h1x, h2x, यू नो आई विल हैव टू रिप्लेस इट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ केटीटी। So here you have fx is 2x1 plus 3x2 and I can take h1x, x1, x2 minus 8 and I can take h2x is how much? Minus 20. Okay, is it clear? Yes, sir. And now the KKT condition for this problem. So the KKT conditions, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्या थी KKT conditions? fjx is equal to lambda 1 h1x plus lambda 2 h1 मतलब hj1x plus lambda 2 hj2x। वही जो हम समीशन में लिखते थे, मैंने lambda 1 ओपन करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। j वही है आपका, j is 1 to 2, है ना? fj will be what? Del f over del xj। hj means what? hj1 means del hj1 upon del xj। It will be your first condition. Second will be what? Lambda I hix is equal to 0। I is also running 1 to 2 क्योंकि दो कांस्टेंट है। hix less than equal to 0 and lambda I। ये वही फोर कंडीशन हो गई, ठीक है? केकेटी कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो बताओ जरा फर्स्ट इससे क्या आएगा। अब ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट? ये जो आपके पास 1 2 3 4 है, तो फर्स्ट इज व्हाट? पहली इक्वेशन क्या आएगी? एफ जे एक्स मीन्स व्हाट? डेल एफ ओवर डेल एक्स वन। तो टू आएगा लेफ्ट में। Yes, sir. 2 is equal to lambda 1 into hj1। तो व्हाट इज hj1? बताओ। 4 आएगा, 0 है, 0। hj1x इसको डिफरेंशिएट करना है। सर h2 आएगा। hj1, अब hj1 का मतलब है कि विद रेस्पेक्ट टू x, पहले मैंने j1 लिया यहाँ पर, फर्स्टली आई एम टेकिंग j इज इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन आपकी बनी, फर्स्ट इक्वेशन इज f1x इज इक्वल टू lambda 1 h1 1x प्लस lambda 2 h1 2x। f1 का मतलब है डेल f ओवर डेल x1, वो तो 2 आ गया, इज इक्वल टू lambda 1, तो lambda 1 लिख दिया इंटू lambda 1। अब h1 1 मीन्स व्हाट? डेल h1 विद रिस्पेक्ट टू x1, तो क्या आएगा? h2 आएगा। x2, यस। तो lambda 1 x2 प्लस lambda 2 h1 2, हाउ मच? h1 2 मतलब h2 को करना विद रिस्पेक्ट टू x1, कितना आएगा? 2h2 आएगा। 2x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 करोगे ना, तो 2x1 आएगा। इट विल बी 2 lambda 2 x1। ये फर्स्ट इक्वेशन आई आपकी। अब जब आप j इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो इट विल बिकम 3 इज इक्वल टू lambda 1 x1 प्लस 2 lambda 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना? सेकेंड इक्वेशन इससे जो आएगी, ये तो फर्स्ट आई, फर्स्ट से सेकेंड है lambda 1 h1, तो सेकेंड आपकी हो जाएगी lambda 1 into x1
एक मिनट, second equation will be lambda 1 into x1 x2 minus 8 is equal to 0 and lambda 2 into x1 square plus x2 square minus 20 is equal to 0. थर्ड विल बी, थर्ड मीन्स इससे जो आएगी, तो ये एक सिस्टम इक्वेशन हो गया. थर्ड विल बी x1 x2 minus 8 less than 0. ये आ जाएगा. एंड फोर्थ वन लैम्डा 1 पॉजिटिव नॉन नेगेटिव लैम्डा 2 नेगेटिव. चलो अब आप देखिए कि अब जो आपके पॉइंट्स आए थे 2,4 है ना, तो 2,4 अगर हम पॉइंट रखते हैं, क्योंकि 2,4 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, तो ये 2,4 अगर आ रहे हैं दे मस्ट सेटिस्फाई ऑल द केकेटी कंडीशन, क्योंकि ये ऑप्टिमल पॉइंट आ रहे हैं हमारे बाई ग्राफिकली मेथड. तो पहले 2,4 रख के हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लें. तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2,4 वैल्यू रख दूं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकल आ सकता है भाई. यू कैन फाइंड योर लैम्डा 1 लैम्डा 2. Yes, sir. क्योंकि ये आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 में इक्वेशन बन जाएगी. सो Yes, sir. पुटिंग 2,4 in equation 1 we get, यहाँ पे रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए. तो you will be getting lambda 1 1/6 and lambda 2 is 1/3 है ना. यहाँ पे जब रखोगे 1 इक्वेशन में और इसे सॉल्व करोगे, now you see whether these are satisfying all the values or not. देखो जरा यहाँ पर रखो, पॉइंट क्या है 2,4, तो यहाँ रखिए, देखिए 2 into 4 8 minus 8 equal less than 0, सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ रखिए 2 square is 4 4 square is 16 20 minus 20 less than is equal to 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है. लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपके जो निकल कर आए आफ्टर पुटिंग दिस, ये भी क्या है, दोनों नॉन नेगेटिव है. तो हियर यू कैन सी दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग ऑल द केकेटी कंडीशन. कर रहा है नहीं? Yes, sir. So here we can check satisfy all the KKT conditions. Hence, इसका मतलब the maxima obtained by the graphical method also satisfy the KKT conditions for a maxima, है ना. अगर यहाँ पर ये होता कि इन पॉइंट को रख के हमारे पास लैम्डा नेगेटिव आ जाता, या ये पॉइंट आपके केकेटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, तो आपकी यहाँ पर केकेटी कंडीशन फेल हो जाती. ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो ये होता है, इट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ द केकेटी कंडीशंस. तो ग्राफिकल मेथड में आपने एक मेथड से सॉल्व करा और केकेटी कंडीशन को वेरीफाई कर लिया. बताइए. क्यों भाई? Yes, sir. So in this way you can solve the problem and you can verify also. Yes, sir. चलिए, टाइम लेस है काफी, तो tomorrow I will start your next topic, quadratic programming problems. ठीक है अविनाश? सर प्रॉब्लम समझ में आई जो आज एक्सप्लेन करी है ये? आई सर समझ में. ठीक है, चलिए तो कल कंटिन्यू करेंगे फिर अब. ठीक है, इसे पढ़िएगा. ओके सर.